Good evening, everyone. Now I'm here with the next topic, human brain. So today we are going to understand the structure and function of the human brain. So human brain is considered to be a complicated topic, but we will understand all the parts of the brain step by step, and I'll tell you the functions also with it. So this video will be little longer, so have patience and try to understand each and everything carefully. Okay, so let's not waste the time and start human brain. So human brain is known as the master organ of the body. Master of the body. Master organ. Why it is known as the master organ? Because it controls and coordinates with all the parts of the body. Okay. And it weighs around 1.3 to 1.4 kg. Varies little with the males and females. So nearly 1.3 to 1.4 kg is the weight, or we can say 1300 gram to 1400 gram. Okay. So this brain, suppose I'm just making a rough diagram. This brain is protected. Okay. This brain is protected by the cranium. What is cranium? Cranium is the skull. So cranium is made up of 8 bones. So this brain is hidden inside that cranium, which is made up of 8 cranial bones. And below this cranium, there are 3 meninges. Meninges means membranes or the layers. There are 3 protective layers, 1, 2, and 3, which are present all around the brain as well as around the spinal cord also. Okay. So this first layer or the first meninges, these are known as meninges. I'm writing number 1, 2, and 3. The first layer, which is the outermost layer, is known as dura mater. Mater. This dura mater is near to the cranium or near to the skull. याद रखना dura mater skull के पास होती है, मतलब बाहर की तरफ होगी dura mater. And dura is from the durable. Durable means it's a tough layer. Tough layer. This dura mater is made up of collagen fibers. ठीक है? It's a tough layer and it protects the brain. Then comes the second layer, which is known as arachnoid mater. This arachnoid mater is a web-like layer. It is formed, it is like this, web. Web means jal. Web-like layer, and this layer also provides protection. It is made up of, arachnoid mater is made up of connective tissue. The third layer is known as pia mater. Pia mater is a delicate and thin layer which is covering and which is just attached to the brain. ये brain है, ये brain के साथ बिल्कुल चिपकी होती है pia mater, just उसके साथ ऐसे cling हुई होती है, ठीक है. और ये जो pia mater है, it is made up of collagen fibers and reticulate fibers, ठीक है. तो उन दोनों के मिक्सचर से pia mater बनती है. और pia mater याद रखना जो brain के पास है, exactly near to the brain is the pia mater. और जो स्कल के पास है दैट इज नोन एज द ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर इज द टफ मेम्ब्रेन. ड्यूरा मीन्स ड्यूरेबल, मेटर मीन्स मदर, तो इट इज नोन एज टफ मदर. ठीक है. पायामेटर नियर द ब्रेन एंड इट इज वेरी डेलिकेट एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. पायामेटर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है. और पायामेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करती है. पायामेटर सिक्रीट सीएसएफ. सीएसएफ मैंने आपको पिछले अपनी वीडियो में बताया था. सीएसएफ क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. थोड़ा सा दोबारा बताती हूँ. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड जो कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स मीन खाली जगह, जहां जहां ब्रेन में वेंट्रिकल्स होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगी, वहां पे ये फ्लूइड होगा. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी ये फ्लूइड सीएसएफ होगा. ये सीएसएफ सिर्फ पायामेटर सिक्रेट नहीं करती, इसके अलावा एक और सेल बताए थे, एपेंडाइमल सेल, दे आल्सो सिक्रेट द सीएसएफ. अब सीएसएफ का काम क्या है? सीएसएफ एक्ट एज अ शॉक अब्सॉर्बर. अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी हर्ट होता है, इंजरी होती है, तो डायरेक्टली ब्रेन को शॉक ना मिले, इसके लिए ये फ्लूइड जो है एक शॉक अब्सॉर्बर की तरह एक्ट करता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन. ब्रेन और ब्लड के बीच में
न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी सीएसएफ कराता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ब्रेन तक सीएसएफ लेके जाता है, ठीक है। तो सीएसएफ एक शॉक एब्जॉर्बर भी है, सीएसएफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर भी है, सीएसएफ प्लेज अ वाइटल रोल। तो यहाँ पे जो पायामीटर है ये सीएसएफ प्रोड्यूस करती है। अब ये देखो, ये वाली जैसे ये क्रेनियम है, इसके बाद मैंने बनाया ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बीच में ये देखो ये गैप है, इसको ऐसे मैं बना रही हूँ, ये गैप है। इसी तरह से ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में एक गैप है, ठीक है। ये जो गैप है, ठीक है, जो ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल मीन ड्यूरामीटर के नीचे वाला, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और जो अरेक्नॉइड और इसके बीच में है, दैट इज नॉट नोन एज सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। अब इसके ऊपर भी है एक ड्यूरल मेम्ब्रेन और क्रेनियम के बीच में भी स्पेस है, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। आपने सुना होगा जब भी सी सेक्शन होता है डिलीवरी के टाइम प्रेग्नेंट लेडीज का, तो उनको एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है। आपने सुना होगा ना एपिड्यूरल। एपिड्यूरल का मतलब है ड्यूरामीटर के और बोन के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल। अब ये वाला गैप कहाँ पे दिया जाता है? ये ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। और ये गैप किसके बीच में होता है? ड्यूरामीटर। ये ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नॉइड ब्रेन से ब्रेन को भी कवर करती है, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है, ठीक है। तो वर्टिब्रा और ड्यूरामीटर में जो गैप होता है दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। एपी मतलब ऊपर, तो ड्यूरामीटर के ऊपर वाला जो गैप है दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। उसके नीचे वाला इज सबड्यूरल, उसके नीचे अरेक्नॉइड, और पायामीटर इज जस्ट अटैच टू द ब्रेन। तो ये इसकी 3 लेयर्स हैं विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ब्रेन को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम मतलब स्कल, इसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन बॉक्स किस चीज का बना होता है? 8 क्रेनियम बोन्स का। मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल विच इज नोन एज क्रेनियम, जो कि बना होता है 8 क्रेनियल बोन्स का, प्लस 3 मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस मीन 3 लेयर्स। क्या नाम है उन मेनिंजेस का? ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर। इसमें से सबसे डेलिकेट होती है पायामीटर और सबसे टफ और रिजिड होती है ड्यूरामीटर। लेट्स सी, लेट्स सी दिस इमेज, ठीक है। ये ब्रेन है, दिस इज ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? बाल है, ठीक है। अगर हमें अपना ब्रेन देखना है तो सबसे पहले क्या आता है? बाल आते हैं। बाल रिमूव करो, नीचे क्या आता है? स्कैल्प आता है। ये स्कैल्प है, ये रेड कलर का स्कैल्प दिखाया है। स्कैल्प के नीचे क्या आएगा? हमारा स्कल आएगा, ये स्कल है। तो स्कल के नीचे ये लेयर्स कौन सी हैं? ये ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, और जो बिल्कुल ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है दैट इज नोन एज पायामीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा है ब्रेन जो है दैट इज कवर्ड और प्रोटेक्टेड विद द डिफरेंट मेनिंजेस एंड द ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अब ये एक साइड पे दिखाया है, ठीक है। ये एक साइड पे जो दिखाया है दैट इज नोन एज द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। हमारा जो ब्रेन है लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक वॉलनट, ठीक है। वॉलनट को खोलोगे तो क्या दिखता है? 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे कॉन्वोल्यूशंस बने होते हैं। कॉन्वोल्यूशंस मीन्स ऊपर नीचे की तरह से बेबी से जैसे ये बने कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। तो ये जो होता है वॉलनट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह जो हमारा ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। ये सपोज लेफ्ट हेमिस्फेयर है, इसका एग्जैक्टली दूसरी साइड पे होगा राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये दोनों हेमिस्फेयर्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज ये ब्रेन है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है बाय अ डीप फिशर, ठीक है। एक फिशर है डीप इनके बीच में जो इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है। उस फिशर को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर या डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये दोनों को एक दूसरे से, लेफ्ट हेमिस्फेयर को और राइट हेमिस्फेयर को, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। पर इंटरनली, इंटरनली मीन्स अंदर से लेफ्ट और राइट साइड्स ऑफ द ब्रेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दोबारा समझो, लेफ्ट hemisphere and right hemisphere both are separated by a deep fissure which is known as longitudinal fissure, लंबा fissure, ठीक है। but internally दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्टेड किससे होते हैं? ये वाला चीज से। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम।
So corpus callosum is the part which connects the two hemispheres of the brain. I hope you got it. Longitudinal fissure क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं थ्रू द कॉर्पस कैलोसम. ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है. सो ये एक इसका हेमिस्फेयर है, दूसरा हेमिस्फेयर दूसरी साइड पे, इंटरनली दे आर कनेक्टेड विद द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है. बाकी पार्ट्स क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे. इसमें आपको ये पार्ट समझ आए कल, मेनिंजेस, ब्रेन का हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसको अभी डिटेल में बताऊंगी, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और कॉर्पस कैलोसम, ये टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है. कॉर्पस कैलोसम क्या है, जिससे इंटरनली ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर कनेक्टेड होते हैं. नाउ अब मैंने आपको बता दिया दोनों हेमिस्फेयर हैं, ठीक है. अगर देखा जाए तो हमारा ब्रेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन. फोर मीन्स जो आगे की तरफ होता है, मिड मीन्स बीच में, हाइंड मीन्स पीछे, ठीक है. तो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. मैं बता रही हूँ, ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. बहुत आराम से समझना क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टर्म्स आने वाले, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. फोर ब्रेन आगे वाला, ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेरिब्रम. ब्रम ब्रम से याद रखना, मतलब बहुत बड़ा कुछ, सेरिब्रम, ठीक है. दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स. और तीसरा पार्ट होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन. फोर ब्रेन, जो हमारा आगे वाला ब्रेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. सबसे पहले आता है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसको ध्यान में याद रखो, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है. 85% ऑफ द टोटल ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है 85% ऑफ द टोटल ब्रेन है, ठीक है. इतना बड़ा है ये सेरिब्रम, ठीक है. और सेरिब्रम मैंने आपको बताया है, जैसे वॉलनट के ऊपर ऐसे होते हैं ना वेव्स, कॉन्वुलेशन, उसी तरह सेरिब्रम के ऊपर भी कॉन्वुलेशंस होती हैं, ठीक है. कॉन्वुलेशंस का बेसिकली मतलब क्या है, कॉन्वुलेशंस का मतलब है फोल्डिंग्स, ठीक है. और ये फोल्डिंग्स करने का मतलब क्या है, फायदा क्या है, ये ब्रेन में फोल्डिंग्स, और ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स हैं उतना ज्यादा बंदा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है. कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं विच सजेस्ट दैट मोर नंबर ऑफ फोल्डिंग, मोर इज द इंटेलिजेंस. सो ये फोल्डिंग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम बनाई, ये फोल्डिंग क्यों होती है, ताकि देखो हमारे ब्रेन के अंदर 120 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ इन द ब्रेन आई एम टॉकिंग, ठीक है. सो 120 बिलियन न्यूरॉन्स को एडजस्ट करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है ब्रेन का. सो दीज फोल्डिंग्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन सो दैट दे कैन अकोमोडेट 120 बिलियन न्यूरॉन्स इनसाइड इट, ठीक है. सो इनको बोलते हैं कॉन्वुलेशंस और फोल्डिंग. तो पूरे सेरिब्रम में क्या होता है, कॉन्वुलेशंस होती हैं, ठीक है. और सेरिब्रम जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट लोब्स. तो एक साइड पे चार लोब्स, दूसरी साइड पे भी चार लोब्स, ठीक है. और ये चार लोब्स हैं क्या, मैं आपको पहले नाम बताती हूँ. फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है. हर एक लोब का अपना अलग डिफरेंस है, ठीक है, अपना एक अलग फंक्शन है. सेरिब्रम को क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है. दूसरा, इसमें इन फोल्डिंग्स होती हैं, कॉन्वुलेशंस होती हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे न्यूरॉन्स इसमें अकोमोडेट हो जाए, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले ये वाला एक बार डायग्राम देख लो, फिर आपको बताती हूँ. ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन है विच इज इन ऑरेंज कलर. ये मिड ब्रेन है और ये है हाइंड ब्रेन. आगे वाला फोर ब्रेन, ये बीच वाला मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, ठीक है. इतना इसको क्लियर रखो. अभी अगली इमेज देखेंगे, देखिए ध्यान से. ये वाला आपको बताया, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, ठीक है. ये है फर्स्ट लोब, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब. ये सेकंड लोब है, पर्पल कलर में, पेरिटल लोब. ग्रीन वाली है ऑक्सीपिटल लोब और ये नीचे जो येलो वाली है टेम्पोरल लोब, ठीक है. अब ये चार लोब्स में डिवाइडेड है, चार लोब्स इधर, चार लोब्स इधर. इनको डिवाइड करने के लिए ये देखो, यहाँ पे एक सल्कस है. सल्कस का क्या मतलब होता है, सल्कस का मतलब होता है ग्रूव, ठीक है, ग्रूव या इंडेंटेशन. तो ये इस चीज को जो फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से डिफरेंशिएट करती है, ये वाली लेयर,
इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सल्कस। याद रखना, सेंट्रल सल्कस वो वाली ग्रूव है, वो वाला इंडेंटेशन है जो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब को जो सेपरेट करता है सल्कस, उसको बोलते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल। पैराइटो मीन्स फ्रॉम पैरिटल और ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो ये है हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अब ये आ गया। ठीक है, ये वाला जो है ये किसको सेपरेट कर रहा है? टेम्पोरल। ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब को किससे सेपरेट कर रहा है? फ्रंटल और पैराइटल से। इसका नाम है सिल्वियन सल्कस। ठीक है, सिल्वियन सल्कस। ये 4 लोब्स हैं ब्रेन की। ब्रेन 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। चारों लोब्स को एक दूसरे से डिवाइड करने वाले को बोलते हैं सल्कस। सल्कस होता क्या है? ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत सारे सल्कस और गायराए होते हैं, मतलब रेस्ड पार्ट्स और ग्रूव्स। तो ये ग्रूव, जो फर्स्ट ग्रूव है जो फ्रंटल को पैराइटल से डिफरेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। दिस इज पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड दिस इज नोन एज द सिल्वियन सल्कस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो 4 लोब्स बनाते हैं। अब देखो, हर लोब का अलग काम है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब सबसे बड़ी होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स इसमें होते हैं। ये इसमें हमारा स्पीच का सेंटर होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रोकास सेंटर। याद रखना, ब्रोकास, BROCA, मैं लिख के बताऊंगी बाद में। ब्रोका सेंटर, ब्रोका सेंटर यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंटल लोब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, कहाँ पे होता है ब्रोका सेंटर? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंटल लोब। ये जो ब्रोका सेंटर है ये हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। स्पीच मतलब बोलने की पावर को। और हम एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच का मतलब कितनी क्लैरिटी से हम बोल सकते हैं। कुछ लोग क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाते, या कुछ लोग हाँ स्टैमर करके बोल रहे हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ये जो यहाँ पे ब्रोकाज एरिया होता है उसमें गड़बड़ होती है। ठीक है, सो फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया है। ब्रोकाज एरिया किसको कंट्रोल करता है? स्पीच को। ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब है इसमें मेमोरी के सेंटर्स भी होते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना, किसी किसी लोग जन को बहुत बातें याद रहती है, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनका फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, तो उसका स्विच कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है? मेमोरी का फ्रंटल लोब में। ठीक है, और जैसे हम आप बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में तो बात है पर मेरे को वर्ड्स में नहीं करना आता है, बोलना नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थॉट्स इनटू वर्ड्स। तो इस चीज की जो पावर होती है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। ठीक है, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारी मेमोरी, हमारी पर्सनैलिटी ऑल्सो। ठीक है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब। ठीक है, मेनली मेन थिंग्स जो हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब। इसमें ब्रोकास एरिया नहीं भूलना, ब्रोकास एरिया का एग्जैक्ट लोकेशन आई एम टेलिंग यू, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंटल लोब। यहाँ फ्रंटल लोब के लेफ्ट पार्ट में ब्रोकास एरिया होता है जो स्पीच को और द क्लैरिटी ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द पेरिटल लोब। पेरिटल लोब को पी से याद रखना, ये पेन की सेंसेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पेन क्या सेंसेशन देता है? सो इट हैज सेंटर्स फॉर द पेन, प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट, इसमें गस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें टेस्ट का बताते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। तो ऐसे रिसेप्टर्स पेन के, प्रेशर के, टेस्ट के और इवन स्पीच के भी सम दे आर प्रेजेंट इन द पैराइटल लोब। देन कम्स द, पहले ऑक्सीपिटल बताती हूँ। ऑक्सीपिटल में हमारी विजन के सेंटर्स होते हैं जो हमें देखने में हेल्प करते हैं और कलर परसेप्शन में हेल्प करते हैं। पता चलता है ये कलर ये कौन सा है, ये कलर दूसरा है, ये कलर येलो है, ये ग्रीन है। सो उसके सेंटर्स किसमें है? ऑक्सीपिटल में। नेक्स्ट द टेम्पोरल। टेम्पोरल इज एसोसिएटेड, टेम्पल जिसको टेम्पल्स बोलते हैं ना, किसके पास है? कान और नोज के पास। ठीक है, तो टेम्पोरल पार्ट में किसको कंट्रोल करने वाले होते हैं? हियरिंग और स्मेल। हियरिंग और स्मेल को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द टेम्पोरल रीजन। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक वर्निकेस एरिया होता है। इसको नोट करके रखना। ब्रोकास एरिया मैंने आपको किसमें बताया? फ्रंटल लोब में। टेम्पोरल में एक वर्निकेस एरिया होता है। वर्निकेस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, ठीक है, या आप कोई बुक रीड कर रहे हो, बोलते यार मैंने पूरी बुक रीड कर ली, मुझे समझ ही नहीं आया बुक में क्या लिखा है।
ठीक है, दूसरा बंदा ने बुक रीड की, बोलता है ये तो बहुत इजी, मुझे तो समझ आ गया, सेम बुक है, तो मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटन वर्ड्स इज हायर एज कंपेयर टू अनदर वन, ठीक है। इसी तरह से जो मैं बोल रही हूँ, किसी को फटाफट से समझ आएगा, किसी को 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि हम कितने रैपिडली किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, लिखी हुई और बोलने वाली, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ तो मेरा ब्रोकाज एरिया वर्क कर रहा है, बिकॉज मेरी स्पीच है। आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वर्निकेज एरिया काम कर रहा है। इस चीज को याद रखना, वर्निकेज एरिया इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब एंड इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स। तो ये सारी लोब्स मैंने आपको बताई हैं, इन लोब्स का फंक्शन बताया है, कौन कौन से सेंटर्स इनमें होते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैं इसके आगे, ठीक है। तो वी वर डूइंग सेरिब्रम। सेरिब्रम मैंने आपको बताया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। एक और चीज मुझे इसमें बताना है, सेरिब्रम, द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, बाहर वाला पार्ट जो सेरिब्रम है का है, इट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला पार्ट इज नोन एज सेरिब्रल मेडुला। अभी जो चीज बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुना, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का या सेरिब्रम का बाहर वाला पार्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट जो मेडुला है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। मैंने आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पहले भी बताया है, दोबारा से बता रही हूँ। ग्रे मैटर कौन सा होता है हमारे ब्रेन में, जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हो, साइटोन हो या डेंड्रॉन्स हो, ठीक है। जहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं वो व्हाइट मैटर होता है, वो व्हाइट मैटर बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज माइलिन इज मेड अप ऑफ फैट्स और फैट्स गिव व्हाइट कलर। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स जहां पे होंगे वो व्हाइट मैटर होगा, जहां पे नॉन माइलिनेटेड होंगे वो क्या होगा, ग्रे मैटर। तो याद रखना, ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर वाली साइड पे मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है, और अंदर की तरफ ब्रेन में सेरिब्रल मेडुला में व्हाइट मैटर होता है। एंड इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, यहाँ पे बाहर वाले पार्ट में क्या होगा, व्हाइट मैटर ज्यादा होगा, अंदर वाले पार्ट में ग्रे मैटर ज्यादा होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। कॉर्टेक्स बता दिया, मेडुला बता दिया, सेरिब्रम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या है, ऑल्फैक्टरी वर्ड इज एसोसिएटेड विद द सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स। रिड्यूस का मतलब ये है कि दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, इसलिए हमारी सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती। दे आर वेरी वेल डेवलप्ड इन सम एनिमल्स, किसमें, डॉग्स में, एलिफेंट हैज अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल। पिग्स में दे हैव मतलब well developed olfactory lobes. So olfactory lobes are associated with the sense of smell. So in human beings, where they are present, I'll show you from this diagram. So these are the olfactory lobes, ठीक है। देखो, ये हर जगह से it is covered by the cerebrum. ये cerebrum है, ये पूरा पिंक वाला क्या है, cerebrum. So it is covered फ्रॉम द सेरिब्रम फ्रॉम ऑल द पार्ट्स। तो एक्सपोज्ड कौन सा पार्ट है, ओनली दिस पार्ट, ठीक है। जो इस साइड वाला वेंट्रल पार्ट है इसका, दैट इज ओनली एक्सपोज्ड, इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर थ्रू द सेरिब्रम। तो ये इसका, ये ऑल्फैक्टरी, ये बल्ब होता है, एंड उसका अगले वाले पार्ट को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पेडंकल। तो दिस इज एसोसिएटेड विद द सेंसेशन ऑफ स्मेल। सेरिब्रम कर लिया। सेरिब्रम में क्या याद रखना है, दोबारा से फटाफट याद करो। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। सेरिब्रम को डिवाइड किया जाता है, इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, पेरेंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। हर किसी में कौन से सेंटर्स है, दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। ये जो है सेरिब्रम, इसके आउटर पार्ट में क्या होता है, ज्यादा ग्रे मैटर, अंदर क्या होता है, व्हाइट मैटर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट वी हैव डन। ये सारे किसके पार्ट्स हैं, याद रखो, फोर ब्रेन के। अभी हम फोर ब्रेन कर रहे हैं, मिड ब्रेन में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या है, दूसरा पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब, विच इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। ह्यूमंस में ये रिड्यूस्ड होता है एंड इट इज कवर्ड विद द सेरिब्रम, ठीक है। एक साइड से एक्सपोज होता है, वेंट्रल साइड से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑल्फैक्टरी। नाउ थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू डू, विच इज नोन एज डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस
और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये वर्ड से समझ आ रहा है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, जो थैलेमस के नीचे होता है दैट इज हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस के ऊपर होता है दैट इज एपिथैलेमस। ये पार्ट्स हैं क्या, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डायंसेफ्लॉन। ये भी किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। मैंने तीन पार्ट बताए थे फोर ब्रेन के, रिता। Now the third part of the forebrain is known as diencephalon, and diencephalon is divided into three parts: thalamus, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है, यहाँ पे एपिथैलेमस। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। सो इन द मिडल इज द थैलेमस। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले एपिथैलेमस के बारे में बताऊंगी। एपिथैलेमस यहाँ पे होता है, एंड फ्रॉम द इंटीरियर साइड, इंटीरियर मीन्स आगे की तरफ से, आगे की तरफ से जो एपिथैलेमस है इट इज अटैच्ड टू द पायामेटर। पायामेटर याद है ना, मेनिंजेस में पढ़ा था। ठीक है, इंटीरियर साइड से इट इज अटैच्ड टू द पायामेटर, और अपनी डॉर्सल साइड से जो एपिथैलेमस है इट इज अटैच्ड टू अ ग्लैंड। बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो ठीक है, डॉर्सल साइड से ये एक पीनियल ग्लैंड से अटैच्ड होता है, और इन दोनों को अटैच करने वाला कौन है, एक स्टॉक होती है जिस विच इज नोन एज पीनियल स्टॉक। ठीक है, तो दिस इज एपिथैलेमस, जो थैलेमस के जस्ट ऊपर है। एपिथैलेमस ऊपर की तरफ पायामीटर से ज्वाइंट होता है, नीचे इट इज अटैच्ड टू अ ग्लैंड कॉल्ड पीनियल ग्लैंड थ्रू अ स्टॉक विच इज नोन एज अ पीनियल स्टॉक। और ये जो पीनियल ग्लैंड है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन इज अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, जो हमें सुलाता है, हमें नींद जिसकी वजह से आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेटोनिन। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस का रिलेशन याद रखना। ठीक है, सो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है पीनियल ग्लैंड, एंड पीनियल ग्लैंड इज अटैच्ड टू द एपिथैलेमस। और ये सब पार्ट किसका है, एपिथैलेमस किसका पार्ट है, हमारे फोर ब्रेन का। ठीक है, और ये मिड में आता है हमारा थैलेमस, ये है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस जो है इट इज एक्चुअली एक्ट एज अ रिले सेंटर। ठीक है, थैलेमस एक्चुअली दे आर टू ओवल बॉडीज, दो ओवल बॉडीज हैं, एंड दीज बॉडीज दे एक्ट एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन को पास करते हैं आगे। रिले में ऐसे ही होता है ना, एक चीज को पास करता है आगे, वो लेके जाता है। तो दिस थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन। जो नीचे से इंफॉर्मेशन आ रही है, कहाँ से, हमारे मिड ब्रेन से या हमारे हाइंड ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है इट इज पास्ड ऑन थ्रू द थैलेमस टू द सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम तक वो इंफॉर्मेशन को रिले कौन करता है, थैलेमस। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस फर्स्ट एक एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन मींस इट सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स। ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है विच इज अ बर्थ हार्मोन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन भी यही ऑक्सीटोसिन करवाता है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स है जो विच आर रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस का काम क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, मीन इट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी थर्स्ट को, हमारी हंगर को, जो हमें प्यास लगती है, जो हमें भूख लगती है, और जो हमें सटाइटी फीलिंग होती है। सटाइटी फीलिंग का मतलब है जब खाना खा के हमारा पेट भर जाता है। ये तो नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा पेट भर गया, हम 10 रोटी खा लें, 20 रोटी खा लें, पता एक आफ्टर सम अमाउंट ऑफ फूड दैट वी हैव वी फील दैट वी आर फुल नाउ, दैट इज नोन एज सटाइटी फीलिंग। ठीक है, सो इस सब सेंटर्स, ये सब के सेंटर्स कहाँ पे है, थर्स्ट के, हंगर के, सटाइटी के, इवन सेक्सुअल डिजायर्स के, दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीजें जो है कंट्रोल करता है। जैसे सपोज अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे 0 डिग्री में हम घूम रहे हो, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है। क्यों रहता है, अगर जैसे हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट होना शुरू हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस जो है उसको अगर मैसेज मिलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो किसको एक्टिवेट करता है, स्वेट सेंटर्स को। स्वेट सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, क्यों, ताकि स्वेटिंग हो और बॉडी कूल डाउन हो जाए। इसी तरह से अगर हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस फटाफट से किसको एक्टिवेट करता है, शिवरिंग को। तो हम शिवर करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस।
इट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है, इसमें स्वेट सेंटर है, इसमें हंगर है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, सेक्सुअल डिजायर का है, इवन स्पीच का भी है इन द हाइपोथैलेमस। तो ये सारे पार्ट्स हमने किए हैं फोरब्रेन के। दोबारा से बता रही हूँ, फोरब्रेन के सेरिब्रम, olfactory lobes which is associated with the smell, and third is diencephalon। diencephalon के तीन पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा फोर ब्रेन अभी खत्म हुआ है। नाउ आई एम मूविंग टू द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन एक बार डायग्राम देखो, मैंने पीछे दिखाई थी आपको। हाँ, ये दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन बहुत थोड़ा सा पार्ट है। मिड ब्रेन दो चीजों से बनता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आता है, इसमें बड़ा अजीब सा नाम है, सुन के डरना नहीं है। एक आता है क्रूरा सेरिब्री, ठीक है, और दूसरा आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना। ठीक है, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना। ध्यान से सुनेंगे क्या है ये। तो इसमें क्या है, एक है क्रूरा सेरिब्री एंड दूसरा पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना। क्वाड्री मीन्स फोर, क्वाड्रिजामिना। दोनों इसके पार्ट्स हैं किसके, मिड ब्रेन में। ठीक है, ये जो है क्रूरा सेरिब्राई, जो क्रूरा सेरिब्राई है ये एक एक्चुअली बैंड है। बैंड किसका है, नर्व फाइबर्स का। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग बैंड्स हैं ऑफ द नर्व फाइबर्स, और इसका बेसिकली काम क्या है, रिले करना। रिले जैसे इसमें थैलेमस में हमने देखा ना, इसमें भी जो बैंड्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ। मींस फोर से मिड ब्रेन में, मिड से हाइंड में, या मिड से हाइंड से लेके आके मिड में देते हैं, फिर मिड से ऊपर देते हैं। सो स्क्रूरा सेरिब्राई इज मेड अप ऑफ बैंड, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बैंड्स ऑफ फाइबर्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो क्रूरा सेरिब्राई हो गया। कार्पोरा क्वाड्रिजामिना, क्वाड्रिजामिना मीन्स फोर। ये बना होता है चार ओवल बॉडीज का, फोर ओवल बॉडीज। ठीक है, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ होती हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर कॉलिक्युलस, कॉलिक्युलस। और जो नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्युलस। क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉलिक्युलस। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना, इट इज मेड अप ऑफ फोर ओवल बॉडीज, टू ऑन द अपर साइड एंड टू ऑन द लोअर साइड। अपर साइड वाले को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलस, नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्युलस। जो ऊपर वाली होती है इट इज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्सेस ऑफ विजन, विजन रिफ्लेक्सेस। विजन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं मैं बताती हूँ। और इंफीरियर कॉलिक्युलस इज एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अब इसका क्या मतलब है, विजन रिफ्लेक्सेस का मतलब है, विजन रिफ्लेक्स का मतलब है कि आप कोई चीज कभी है कि भीड़ में आपको लगा कोई आपकी जान पहचान का, आप उसको मुड़ के देखोगे, अपनी गर्दन उठाओगे, हाँ ये मेरी जान पहचान का बंदा है। यहाँ आपने कोई चीज देखी, सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अचानक से कोई ड्रेस, आप वैसे ही चल रहे हो, चलते चलते कोई ड्रेस डिस्प्ले हुई, बहुत अच्छी लगी, आप अपनी गर्दन घुमाओगे। तो ये आपका साइट मतलब आपके विजन ने रिफ्लेक्स किया और आपकी नेक को मूव किया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी नेक मूव हो जाती है। सो दैट इज नोन एज विजुअल रिफ्लेक्स। इसी तरह से ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, इंफीरियर कॉलिकुलस। और दोनों ये किसके पार्ट्स हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजम। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, जैसे भीड़ में आपने किसी ने आपका नाम लिया, आप उस तरफ देखोगे किसने नाम लिया, तो आपकी नेक मूव करती है। ठीक है, आपकी आंखें भी मूव करती हैं टू सी कि कौन मुझे बुला रहा है। ठीक है, सो दीज आर नोन एज ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे दे आर कंट्रोल बाय द कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना के सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई। ये काम है हमारा मिड ब्रेन का। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। नाउ आई एम मूविंग टू द हाइंड ब्रेन। ठीक, हाँ एक और चीज भूल गई बताना, इसमें मिड ब्रेन में एक रेड न्यूक्लियस भी होता है। रेड न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इसको याद रखना इंपॉर्टेंट। रेड न्यूक्लियस क्या होता है, रेड न्यूक्लियस ग्रे मैटर का पैच होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाइट मैटर। इसको रेड न्यूक्लियस क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, और रेड न्यूक्लियस एक कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के मिडल में प्रेजेंट होता है। और ये जो रेड न्यूक्लियस है हमारे बॉडी का पॉस्चर और हमारी मसल्स की टोन, हम बोलते हैं ना हमारे मसल्स टोन्ड है कि नहीं है,
So this is all controlled by the red nucleus. Red nucleus है क्या? It is a patch of gray matter which is present inside the white matter. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस. ठीक है, इट कंट्रोल द बॉडी पोस्चर, हम कैसे चलते हैं, और इवन जैसे हम चलते हैं तो हमारे हाथ है अपने आप ऐसे हिलते हैं. ठीक है, so that is also controlled by the red nucleus. ठीक है, all these movements are controlled by the red nucleus. Clear? So this is midbrain. Now we are moving to the hindbrain. Hindbrain means नीचे वाला. It is made up of three parts: pons viruli, medulla oblongata and cerebellum. ठीक है, पहले हमने पढ़ा था सेरिब्रम, अब है सेरिबेलम. जो सेरिबेलम है ये सेरिब्रम का छोटा भाई है. छोटा भाई मतलब एग्जैक्टली उसकी तरह ही दिखता है, बस छोटा है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिबेलम. दिखते दोनों एक जैसे ही हैं. एक पिक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, फिर उस पर क्लियर समझेगा. ठीक है, ये देखो, ये इस डायग्राम में ये पूरा येलो क्या है, हमारा सेरिब्रम. ठीक है, ये हमारा है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये सारा यहाँ पे क्या है, फोर ब्रेन. ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन, और ये हमारा नीचे आता है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में क्या है, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम. सेरिबेलम मैंने आपको अभी बताया, इट इज एग्जैक्टली लाइक द ये सेरिब्रम. क्या एग्जैक्टली लाइक, ऐसे कैसे है, जैसे इसके ऊपर मैंने बताया ना कॉन्वुलेशंस होती हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, सेम फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द सेरिबेलम आल्सो. ठीक है, इसी तरह से, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उन न्यूरॉन्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना रहता है, इसलिए इसमें भी फोल्डिंग्स होती है. ठीक है, तो सेरिबेलम में भी उसी तरह से फोल्डिंग्स हैं जैसे कि सेरिब्रम में है, पर ये छोटा है. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. जो सेरिब्रम है उसमें ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रांच लाइक पैटर्न्स है. ये ब्रांचेस किसकी हैं, व्हाइट मैटर के, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ग्रे मैटर. एंड ये ब्रांचेस ऐसे दिखते हैं जैसे ब्रांचेस ऑफ द ट्री. सो दे आर नोन एज आर्बर विटी. आर्बर विटी, आर्बर फ्रॉम द ट्री. ठीक है, सो आर्बर विटी आर द ब्रांचेस ऑफ व्हाइट मैटर, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेंगे, सेरिबेलम में. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द व्हाइट मैटर विच आर प्रेजेंट इन द पैचेस ऑफ ग्रे मैटर. ठीक है, रेड न्यूक्लियस हो गया, आर्बर विटी हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पस कैलोसम हो गया. ठीक है, ये सब क्या है, याद रखना है. ठीक है, तो ये सेरिबेलम है. जैसे हमारा सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड था, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इसी तरह से हमारा जो सेरिबेलम भी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और इनको डिवाइड करने, इसको डिवाइड करने वाला क्या नाम क्या बताया था, याद करो, लॉन्गिट्यूडनल फिशर. इन दोनों को डिवाइड करने वाले का नाम है वर्मिस. ठीक है, वर्मिस जो है इसको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये हो गया सेरिबेलम. पॉन्स, पॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक बल्ज की तरह. ठीक है, और पॉन्स वेरुलाई, इसका एग्जैक्टली पूरा नाम है पॉन्स वेरुलाई. पॉन्स वेरुलाई इज एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट बेसिकली रेस्पिरेशन में. तो ब्रीदिंग रेट कभी हमारा फास्ट होता है, कभी स्लो ब्रीथ कर, जैसे हम भाग के आते हैं या ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है. दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे, एपिन्यूएस्टिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर. ये सारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स आर प्रेजेंट ऑन द पॉन्स वेरुलाई. इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिले सेंटर. रिले सेंटर मीन्स यहाँ से मैसेज, मेडुला से मैसेज ऊपर की तरफ लेके जाता है, मिड ब्रेन में या सेरिब्रम में. ठीक है, तो पॉन्स का ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग कंट्रोल में काम है. स्पीच में भी पॉन्स के सेंटर्स भी पॉन्स में सॉरी होते हैं. देन कम्स द मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा नीचे का पार्ट है. ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जस्ट इट्स प्रेजेंट बिलो द पॉन्स वेरुलाई. एंड मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इट कंट्रोल्स आवर हार्ट रेट, इट कंट्रोल्स आवर वेसोमोटर एक्टिविटीज. वेसोमोटर एक्टिविटीज मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं. डायलेट मीन्स खुलती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब छोटी हो जाती हैं. दिस इज ऑल डन बाय द सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लंगेटा. हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारी ये वेस्कोमोटर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं. अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में इंजरी हो जाए तो इट कैन कॉज टू द इमीडिएट डेथ. Why? Because immediately heart
बीट करना बंद कर देगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, विच विल लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसलिए बोलते हैं कि पीछे की तरफ सर पे चोट नहीं लगना चाहिए, चोट लगता है तो इट्स वेरी डेंजरस। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज इट कैन हर्ट या इट कैन इंजर द मेडुला ऑब्लोंगेटा विच विल directly act on the centers which are involved in the regulation of heartbeat and breathing. So this is our hind brain. ठीक है, तो अभी हमने पूरे तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब आई होप ये सारा क्लियर है, ये पिक्चर भी क्लियर है, ये डायग्राम बनाने आएगा तो इट्स क्लियर। अभी कुछ क्वेश्चंस आई विल आस्क, अपने आप को देखो कि कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। इस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी डन। टेस्ट योर रिटेनिंग पावर, देखो कितना रिटेन किया है। कौन कौन सी मेनिंजेस हैं? 3 मेनिंजेस मैंने बताई थी, ड्यूरामेटर, मिडल वाली अरेक्नॉइड और तीसरी पायामीटर। याद करो, ब्रेन के क्लोज कौन सी है, ब्रेन के साथ चिपकी हुई कौन सी है? आई विल नॉट आंसर। स्कल के साथ चिपकी हुई कौन सी है? तीनों में से कौन सी स्कल के साथ चिपकी है, कौन सी ब्रेन के साथ है? नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच? एक सेंटर बताया था मैंने फ्रंटल लोब में, जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच को कंट्रोल करता है। जो अगर उसका वो सेंटर में गड़बड़ है तो बंदा स्टैमर करेगा या अच्छे से क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाएगा। तो सेंटर का नाम बताओ। एक और सेंटर बताया था, उसका नाम मैं बता देती हूँ, वर्निके सेंटर। वो कहाँ प्रेजेंट था? टेम्पोरल लोब में। वो क्या कंट्रोल करता है वो याद करो। What are the functions of CSF? CSF is cerebrospinal fluid. इसका क्या काम है? मैंने आपको सारे काम बताए हैं, just try to recall. Which is the largest and the second largest part of the brain? ये तो I hope सबको आना चाहिए आंसर। Name the part of the brain that helps in understanding of the written and spoken words. कौन सा ऐसा पार्ट है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है जो हमारे रिटन और स्पोकन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग कराता है? Corpora quadrigemina and crura cerebri are the parts of, किसके पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन के हैं, मिड ब्रेन के हैं या हाइंड ब्रेन के हैं? याद करो। वर्मिस इज एसोसिएटेड, वर्मिस किसके साथ एसोसिएटेड होता है? वर्मिस, चलो मैं बता देती हूँ, वर्मिस मैंने बताया था सेरिबेलम में। वर्मिस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करता है जो बताना भूल गई, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बॉडी पॉस्चर। वर्मिस भी हमारे बॉडी पॉस्चर को डिसाइड करता है, आल्सो मसल टोन। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच विल टेस्ट योर रिटेनिंग पावर, हाउ मच this topic you have retained. Okay, I hope you are able to understand this topic, and if you have any queries you can write down your questions in the comment box. I will definitely try to answer your questions, and do let me know which topic you want to study next. And also do like and share the videos, and please give your comments and feedbacks, it will help me. Okay, thank you so much, have a nice day.